السلام علیکم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ استغفار کی طاقت اور فضیلت۔ دوستو، آج ہم اپنے گناہوں کے سمندر میں غرق ہیں، قدم قدم پر رب کریم کی نافرمانیاں کر رہے ہیں۔ ہماری صبح، ہماری شام، ہماری رات گناہوں سے گھرا ہوا ہے۔ نفس اور شیطان کے چنگل میں پھنس کر ہم اپنے رحیم ہیں۔ تو دوستو، آج ہم اسی موضوع پر بات کرنے والے ہیں۔ آپ سے چھوٹی سی گزارش ہے کہ ویڈیو کو لاسٹ تک ضرور دیکھیے گا اور ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں۔ دوستو، آج ہم اپنے گناہوں کے سمندر میں غرق ہیں، قدم قدم پر رب کریم کی نافرمانیاں کر رہے ہیں۔ ہماری صبح، ہماری شام، ہماری رات گناہوں سے گھرا ہوا ہے۔ نفس اور شیطان کے چنگل میں پھنس کر ہم اپنے رحیم اور مہربان پروردگار کی بغاوت کے مرتکب ہو رہے ہیں۔ دنیا کی محبت نے ہمیں آخرت سے غافل کر رکھا ہے۔ اس فانی عارضی اور ختم ہو جانے والی زندگی کو ہم نے اصل زندگی بنایا ہوا ہے۔ خوف خدا، فکر آخرت اور بارگاہ الہی میں حاضری کا احساس ختم ہوتا جا رہا ہے۔ نتیجہ سامنے ہے، گناہوں پر شرمسار ہونا، اپنی لغزشوں کا اقرار کرنا اور اپنے جرم کا اعتراف کرنا وہ مبارک و بابرکت عمل ہے جس کا توڑ شیطان کے پاس نہیں۔ امام اوزاعی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں، ابلیس نے اپنے چیلوں سے کہا، تم انسان کو کس طرح گمراہ کرتے ہو؟ وہ کہنے لگے، ہم ہر طریقے اور ہر چال سے انہیں گمراہ کرتے ہیں۔ ابلیس نے جواب میں کہا، کیا استغفار کے بارے میں بھی تم نے انہیں گمراہ کیا ہے؟ یہ سن کر ابلیس کے چیلوں نے کہا، استغفار تو وہ عمل ہے جو توحید باری تعالیٰ کے ساتھ جڑا ہوا ہے، اس پر ہمارا زور کیسے چل سکتا ہے؟ ابلیس نے کہا، میں انسانوں کے درمیان ایسی چیز پھیلاؤں گا جس پر انہیں استغفار کرنے کی نوبت نہیں آئے گی۔ امام اوزاعی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں، شیطان نے انسانوں میں خواہشات اور تمناؤں کو پھیلایا جسے کوئی گناہ نہیں سمجھتا اور اس پر استغفار نہیں کرتا۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے کہ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بے شک شیطان نے حق تعالیٰ سے کہا تھا، اے میرے رب، تیری عزت کی قسم، میں ہمیشہ تیرے بندوں کو گمراہ کرتا رہوں گا جب تک ان کی روحیں ان کے جسموں میں موجود رہیں گی۔ جواب میں اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا تھا کہ قسم میرے جلال کی قسم، میرے بلند مرتبہ کی قسم، جب تک میرے بندے مجھ سے مغفرت طلب کرتے رہیں گے میں انہیں معاف کرتا رہوں گا۔ دوستو، آج ہم سوچیں کہ ہم کتنا استغفار کرتے ہیں۔ جب انسان اپنے گناہوں کی توبہ کرتا ہے، استغفار کرتا ہے، تو اللہ اس کے گناہوں کو معاف کر دیتا ہے۔ اللہ کتنا بڑا رحیم ہے۔ قرآن میں استغفار کے 8 بڑے فائدے بتائے گئے ہیں۔ نمبر 1، یہ رحمت کے دروازے کھولتا ہے اور قرآن کہتا ہے، اپنے رب سے معافی مانگو، وہ بہت بخشنے والا ہے۔ حدیث کے مطابق نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ دن تک اپنا ہاتھ بڑھاتا ہے تاکہ رات کا گنہگار توبہ کر سکے، اور وہ رات تک اپنا ہاتھ بڑھاتا ہے تاکہ دن کا گنہگار توبہ کر سکے۔ یہ اللہ تعالیٰ کی رحمت ہے کہ وہ اپنے بندے کے لیے ہاتھ بڑھاتا ہے۔ نمبر 2، اس سے آپ کے مال اور اولاد میں اضافہ ہوگا۔ قرآن کہتا ہے، اور وہ تمہاری دولت اور اولاد میں اضافہ عطا کرے گا۔ آج ہر کوئی مال کے پیچھے لگا ہوا ہے، اور جس کے پاس اولاد نہ ہو وہ اولاد کو حاصل کرنے کے لیے کیا کیا جتن نہیں کر رہا، لیکن کیا انہیں نہیں پتا کہ استغفار سے بند دروازے بھی کھل سکتے ہیں اور اولاد سے مایوس لوگ اپنی مراد کو پا سکتے ہیں۔ اسی لیے یہ موقع ہاتھ سے جانے نہ دیا جائے۔ نمبر 3، استغفار کرنے والوں کی دعا ضرور قبول ہوتی ہے۔ ایک مومن کے لیے اس سے بہتر کچھ نہیں کہ وہ جو کچھ دعا کرے اللہ اس کو قبول کرے۔ حقیقت میں ایسا ہوگا کیونکہ استغفار میں وہ طاقت ہے کہ وہ دعا کو قبول کروانے میں مدد کرتا ہے۔ نمبر 4، استغفار رزق اور ہماری ضرورتیں پوری کرتا ہے۔ قرآن کہتا ہے، اپنے اللہ سے معافی مانگو اور مغفرت طلب کرو، وہ آپ کو ایک مخصوص مدت کے لیے ایک راحت کی زندگی سے نوازے گا اور ہر بہتر عمل کرنے والوں کو اس کا ثواب عطا فرمائے گا۔ اس آیت میں اللہ نے استغفار کرنے پر خاص کر روزی اور رزق و ہماری ضرورتوں کو پوری کرنے کا وعدہ فرمایا ہے، تو ہمیں اس موقع کو گنوانا نہیں چاہیے۔
नंबर 5, इस्तगफार करने वाला अल्लाह की पकड़ से बच जाता है। कुरान कहता है और अल्लाह उनको अजाब नहीं देंगे जब तक वो मगफिरत तलब करते रहेंगे। इंसान बहुत सारी तकलीफ़ों और मुसीबतों से दो चार होता है, ऐसे में इस्तगफार बेशुमार बलाओं और आफतों को टालने वाला है। नंबर 6, अल्लाह रहमत की बारिश करेगा। कुरान कहता है और अल्लाह तुम पर मूसलाधार बारिश बरसाएगा। हम पर अजाब का एक हिस्सा ये है कि बारिश रुक जाती है, लेकिन इस्तगफार हमारे लिए अल्लाह की रहमत की बारिश लाने का एक बेहतरीन तरीका है। नंबर 7, हमारी ज़िंदगी में ताकत का इजाफा करता है। कुरान कहता है अपने रब से माफ़ी मांगो और उससे तौबा करो, वह तुम पर आसमान से बारिश भेजेगा और तुम्हारी ताकत में इजाफा करेगा। यह दुनिया हमें कमज़ोर और परेशान करने पर तुली हुई है, ऐसे में इस्तगफार से ज़हनी, जज्बाती और रूहानी तौर पर ताकत और सब्र हासिल होता है। नंबर 8, अल्लाह आपको बागों और नहरों से नवाजेगा। कुरान कहता है अल्लाह तुम्हारे लिए माल औलाद को बढ़ाएंगे और तुमको बाग अता फरमाएंगे और नहरें जारी फरमाएंगे इस ज़मीन पर या उसके बाद। अल्लाह का कुरान में वादा है कि वह बागों और नहरों से नवाजेगा उसको जो कसरत से इस्तगफार करता है। दोस्तों, इस्लाम एक ऐसा दीन है जो मुसलमानों को बामकसद ज़िंदगी गुजारने का मुकम्मल तरीका बताता है। अल्लाह ताला ने इंसान को अशरफुल मखलूक़ात बनाया, यानी सोचने समझने की सलाहियत दी, सही और गलत की समझ दी। अब यह इंसानी अक्ल पर बात है कि वह अच्छा करता है या बुरा, लेकिन इंसान गुनाहों का पुतला है और अल्लाह हमेशा अपने बंदों के साथ रहम का मामला करता है। इसीलिए उसने मुसलमानों के लिए हिदायत का रास्ता भी खुला रखा है, ताकि अगर कोई मुसलमान गुनाह करे तो तौबा इस्तगफार से अच्छा रास्ता पा सके। अस्तगफिरुल्लाह, या अल्लाह मुझ गुनाहगार को बख्श दे, यह एक सादा सा जुमला है लेकिन ताकतवर दुआ है। गुनाहों की बोझ से अगर दिल भारी हो, जहन परेशानियों का शिकार हो जाए तो अस्तगफिरुल्लाह की एक सादा सी दुआ आपके दिल को पुरसुकून कर देती है, जिसे किसी भी वक्त जब भी चाहे पढ़ सकते हैं। बेशक तौबा और इस्तगफार करने से अल्लाह अपने बंदे पर रहमत के दरवाजे खोल देता है। हमारा दीन हमें गुनाहों से बचने का दर्स देता है, लिहाजा अगर खुलूस नियत के साथ तौबा की जाए तो अल्लाह की बारगाह में वह ज़रूर कबूल होती है और गुनाहों का खात्मा होता है। अल्लाह ताला ने कुरान मजीद में मुसलमानों की भलाई के लिए इस्तगफार के बहुत बड़े बड़े फ़ायदे बताए हैं। अस्तगफिरुल्लाह रहमत के दरवाजे खोल देता है। कुरान पाक में एक जगह इस्तगफार की अहमियत इस तरह बयान की गई है कि अपने रब से माफ़ी मांगते रहो, बेशक वह हमेशा माफ़ी देने वाला है, यानी सिर्फ अल्लाह से रहमत के तलबगार हैं क्योंकि वही मुआफ़ करने वाला है। अल्लाह ताला फरमाते हैं कि जिसने ज़िंदगी में सुकून लेना है वह इस्तगफार करे। दोस्तों, इस्तगफार कर लो, जब तक ज़िंदा रहोगे अल्लाह ताला तुम्हें चैन नसीब फरमा देगा। एक हदीस के मुताबिक नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाह ताला ऐसे शख्स को अपने अर्श के साए में जगह देगा जिसने तन्हाई में अल्लाह ताला का ऐसा जिक्र किया कि उसके आंसू जारी हो गए। इस्तगफार से दौलत और औलाद में बरकत होती है। आज के इस दौर में लोग दौलत कमाने में इस कदर गाफिल हो चुके हैं कि वह इस्लाम और अल्लाह ताला के साथ अपने फ़राइज़ को भूलते जा रहे हैं। वो यह भी भूल बैठे हैं कि तौबा करने के लिए कुछ वक्त निकालना ज़रूरी है, क्योंकि उसकी बरकत से अल्लाह रिज़्क, माल और दौलत और औलाद में इजाफा करते हैं और इस बात का जिक्र कुरान मजीद में भी किया गया है। इस्तगफार करने से इंसान की मांगी गई हर दुआ कबूल होती है और खुलूस दिल से अल्लाह की बारगाह में माफ़ी मांगने से दुआएं कबूल होती हैं। किसी मोमिन के लिए दुआ से बेहतर कोई और चीज़ नहीं। वह जो कुछ अपने रब से मांगता है, जिस भी चीज़ की उम्मीद रखता है, एक दिन उसका रब उसे नवाज देगा। क्योंकि मुसलमान होने की हैसियत से हमारा यह यकीन है कि सिर्फ अल्लाह के पास यह सब इख्तियार है कि वह हमारी दुआएं कबूल करने पर कादिर है। इस्तगफार करने से रिज़्क में इजाफा होता है। कुरान मजीद में अल्लाह पाक का यह वादा है कि अल्लाह से माफ़ी मांगते रहने से वह रिज़्क में खैर और बरकत करता है। मोमिन के रिज़्क में फरावानी और इजाफा एक मकसूद मुद्दत के लिए होता है। इस बात की वजाहत इस तरह की गई है कि इंसान अपनी नेमतों को जल्द भूल जाता है और अल्लाह नहीं चाहता कि उसके बंदे उसे भूल जाएं, इसलिए हमें इस्तगफार करते रहना चाहिए। इस हवाले से फरमाने रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की, जिसने इस्तगफार को अपने ऊपर लाजिम कर लिया, अल्लाह उसकी हर परेशानी दूर फरमाएगा और हर तंगी से उसे सुकून अता फरमाएगा और उसे ऐसी जगह से रिज़्क अता
फरमाएगा जहाँ से उसने गुमान भी नहीं किया होगा। अल्लाह ताला हर मुसलमान को आजमाइश और मुसीबतों में मुब्तला करता है। असल में यह मोमिन बंदे का इम्तिहान है। अल्लाह इस तरह बंदे को अपने आप पर और इस्लाम पर उसके ईमान की मजबूती को देखता है। ऐसे वक्त में शिकवा नहीं, अल्लाह से माफ़ी मांगना चाहिए, इस्तग़फ़ार करना चाहिए, क्योंकि अल्लाह ताला तौबा करने वाले बंदों को सज़ा नहीं देता बल्कि माफ़ करता है और हमें अपनी आम ज़िंदगी में भी यही अमल करने की तौफीक देता है। तौबा इस्तग़फ़ार की फजीलत बंदे के लिए अल्लाह की रहमत और फजल के दरवाजे खोल देता है। बेशक अल्लाह बहुत रहीम और करीम है और जब हम उससे गिड़गिड़ा कर माफ़ी मांगते हैं तो वह हमें हिदायत अता करता है, अपनी रहमतों से नवाजता है और हमारा दिल अपनी तरफ मोड़ लेता है। इस वक्त हमारी ज़िंदगी गैर महफूज का शिकार है और इसमें कोई शक नहीं कि इस्तग़फ़ार का दरवाज़ा दुनियावी ज़िंदगी में सब्र अता करने का बेहतरीन ज़रिया है। यह हमें ज़हनी, जज्बाती और रूहानी तौर पर मजबूत करता है। कुरान में एक जगह बयान किया जाता है, अपने रब से माफ़ी मांगो और फिर उससे तौबा करो, वह तुम्हारे ऊपर आसमान से बारिश बरसाएगा और तुम्हें अपनी ताकत में से ताकत बख्शेगा। कुरान मजीद में इस्तग़फ़ार करने वाले से अल्लाह ताला ने वादा किया है कि वह उसको अपने बेपनाह फजल से नवाजेगा, इस दुनिया में भी और आखिरत में भी। कुरान में अल्लाह अपने बंदों से मुखातिब होकर फरमाता है कि और तुम्हारे लिए बागात मुहैया करूँ और तुम्हारे लिए दरियाओं का सामान मुहैया करूँ। किसी शख्स ने हज़रत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के सामने ऊंची आवाज़ से अस्तग़फ़िरुल्लाह कहा तो आप रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने उससे फरमाया, कुछ मालूम भी है कि इस्तग़फ़ार क्या है? इस्तग़फ़ार मोमिन बंदे का बुलंद मकाम है और यह एक ऐसा लफ्ज़ है जो 6 बातों पर हावी है। अव्वल यह है कि जो हो चुका उस पर शर्मिंदा होना, दूसरा यह कि हमेशा के लिए गुनाह ना करने का पक्का इरादा कर चुका हो, तीसरा यह कि मखलूक के हुकूक अदा करना यहाँ तक कि अल्लाह के सामने इस हालत में पहुँचो कि तुम्हारे दामन पाको साफ हो और तुम्हारी कोई पकड़ ना हो, चौथा यह कि जो तुम पर फ़र्ज किए हुए थे और तुमने उन्हें ज़ाया कर दिया था उन्हें अब पूरी तरह अदा करो, पाँचवा यह कि जो गोश्त हराम से परवरिश पाता रहा है उससे तौबा करो, छठा यह कि अपने जिस्म को इताअत से आशना करो, जिस तरह गुनाह से लज्जत मग़फ़िरत तलब करने के हकदार हैं जो गुनाह की दुनिया से ख़ुद को अलग कर चुके हैं। वरना जिसने गुनाह का इरादा ही नहीं छोड़ा, जिसने अल्लाह की जानिब मुँह ही नहीं फेरा, उसका यह कहना है कि दुरुस्त नहीं है कि मैं अल्लाह से मग़फ़िरत तलब कर रहा हूँ या कर रही हूँ। तो आइए हम सब मिलकर अल्लाह से इस्तग़फ़ार करने की आदत डालें, चलते फिरते उठते बैठते अस्तग़फ़िरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबिन व अतूबु इलैह। इसके अलावा आप सिर्फ अस्तग़फ़िरुल्लाह 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 भी पढ़ सकते हैं। दोस्तों, अल्लाह पाक हमें नेक अमल करने की तौफीक अता फरमाए और हमारा खात्मा ईमान पर फरमाए। अल्लाह पाक मेरी और आपकी बख्शिश फरमाए, आमीन। प्यारे दोस्तों, उम्मीद करती हूँ कि आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और जाते जाते एक प्यारा सा कमेंट करके ज़रूर जाएँ। फिर मिलेंगे एक नए मौजू के साथ एक नए वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़। दुआओं में याद रखें।